قبل رمضان ب5 أيام. قد بدأنا هذه الدورة 25 شعبان، واليوم الحمد لله وصلنا إلى الجزء 29. وشيخنا طريقتنا في هذه الدورة المباركة أننا نأخذ الصور على مثل هذه الطريقة، أن الموضوعات والمضامين اللي كتبت أو ذكرت في هذه الصور هي أمامنا في هذه الشرائح. ثم ماذا نفعل؟ نأخذ كل صورة وكل صفحة يعني حسب هذه الألوان. مثلا اللون الأصفر هي أول لون عندنا في سورة المزمل، فنأخذ أولا أصفر، ثم نأخذ بعدين اللون اللي بعده واللون اللي بعده، فنفسر ونترجم من هذه الشرائح. فهذه طريقتنا، والحمد لله في هذه الدورة قد صممنا أكثر من 3000 شريحة مني ومن مجموعتي جزاهم الله خيرا. قد صممت أكثر من 3000 شريحة في هذه الدورة الحمد لله، ووصلنا إلى الجزء 9. وبعد غدين يوم الخميس إن شاء الله سنكمل بإذن الله تعالى هذه الدورة المباركة. فأنا باسمي وباسم جميع الحاضرين في هذه الدورة أرحب بكم، فأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا وجزاكم الله خيرا. شاركتمونا في هذه الدورة، وكل المشاركين نرجو، وأنا وكل المشاركين يرجون منكم أن يستمعوا إلى نصيحتكم، وعلى طريقتنا الماضية إن شاء الله سأترجم نصيحتكم إلى اللغة الأردية إن شاء الله كلاما وكلاما إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أقول أنا حقيقة سأحضر الآن لأقول لكم مبروك ومبارك عليكم هذا العمل، وليس ناصحا لكم، أنتم تنصحونني، لكن أقول مبارك عليكم هذا العمل، وهو العمل أقول صحبة كتاب الله عز وجل وتفسيره. جزاكم الله خير. اي نعم शेख मुतरजिम यानी शयन फशयन शेख साहब ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पर असल में नसीहत तो नहीं करनी चाहिए, नसीहत तो आप लोग ही करें, माशाल्लाह इतने दिनों से आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि मैं तो बस आप लोगों को मुबारक देने के लिए यहाँ पर आपके साथ आया। طيب أنا أستأذنكم في البداية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال. बारक अल्लाह फीकुम। शेख साहब ने हमदो सना के बाद वो ये फरमा रहे हैं कि मैं सबसे पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आपके हम सब के रोज़ों को, क़याम को और जितनी भी नेक इबादत हैं इस महीने के अंदर अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। ثم أقول هنيئا لكم هذه الساعات التي قضيتوها مع هذا الكتاب العظيم وهذا التفسير. शेख साहब ये कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माशाल्लाह आपने इतने घंटे अल्लाह की किताब के साथ, उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ आपने इतने घंटे गुजारे, तो मैं इस पर आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। واعلموا أن خير الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الأوقات في مثل هذه الليالي يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. माशाल्लाह शेख साहब बता रहे हैं, और साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन दिनों के अंदर ये जो रातें होती थीं जिब्रील अमीन के साथ बैठकर कुरान मजीद का दौर किया करते थे। فأنتم في خير الشهور مع خير كتاب تقتدون بخير نبي عليه الصلاة والسلام. माशाल्लाह शेख साहब ने कहा तो इससे ये पता चला कि आप लोग सबसे बेहतरीन महीने में सबसे बेहतरीन किताब को पढ़कर सबसे बेहतरीन शख्सियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करने वाले। واعلموا أيضا أن هذا القرآن العظيم فيه كل خير، كل خير في هذه الدنيا وفي الآخرة فإنه موجود في القرآن العظيم.
और शेख साहब ये बता रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी खैर है वो इस कुरान, इस किताब के अंदर मौजूद है। وكل شر في الدنيا وفي الآخرة فموجود التحذير منه في هذا القرآن العظيم. और फरमाते हैं दुनिया के अंदर जितना भी शर या कोई भी बुराई है उसका डरावा, उससे मना इस कुरान मजीद में किया गया है, वो भी इसमें मौजूद है। ولذلك ينبغي للمؤمن وللمؤمنة أن يفهم هذا القرآن فهما صحيحا كما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. तो फरमाते हैं इसी वजह से हर मोमिन बंदे और मोमिन औरत को ये चाहिए कि कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में सही तरह से समझें, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को समझा। ولذلك قال الله عز وجل في الغاية من إنزال هذا القرآن العظيم قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. कहते हैं देखें इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इस किताब के बारे में ये फरमाया कि हमने इस किताब को आपकी तरफ नाजिल किया, मुबारक, ये बरकत वाली है। किताब के नुज़ूल का मकसद कि वो इसकी आयात में तदब्बुर करें और इससे नसीहत करें। الآية الواحدة التي يقرأها الإنسان ويفهم معناها ويفهم بعض مراد الله عز وجل منها خير له من كثير من الأمور التي ينفق فيها الأوقات بدون فائدة. माशाल्लाह कह रहे हैं अगर आप एक आयत को भी अच्छी तरह से समझ गए तो ये सबसे आपका बेहतरीन वक्त है, जो आप किसी भी काम में कोई भी वक्त सर्फ करते हैं तो उसके मुकाबले में सबसे बेहतरीन वक्त हुआ है जिसके अंदर बैठकर आप एक आयत को अच्छी तरह से समझ जाए। وكلكم أو معظمكم قد لم يكن كلكم يحفظ سورة العصر، سورة العصر، وإذا كان بالإمكان يا شيخ زين أحد يقرأ علينا سورة العصر أسمعه منه الآن. طيب नाम शेख व अखूना हाफिज उमर अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, शेख साहब की ये ख्वाहिश है कि वो सूरतुल असर की तिलावत सुने किसी से और उसके बाद फिर वो उस सूरत का तर्जमा तफसीर आपको पढ़ाएं या आपको बताएं। तो जी हाफिज उमर क्या हमारे साथ मौजूद हैं क्लास में? आप जरा हैंड रेज करें। हाफिज उमर गालिबन अभी जवाबात में मैंने आपको देखा था, या उनके अलावा अगर कोई पूरे कुरान मजीद के हाफिज हैं। नाम मन मिनल हुफ़ाज़ मौजूद माना फी हादल फ़सल फलयरफ़ा यदा। नाम अखूना अबू हमदान मौजूद माना फ़नफ़्तह लहू माइक लिनस्मा मिन्हु सूरत अल-असर। नाम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन अबू हमदान, माशाअल्लाह। मुमकिन तक़रा अलैना सूरत अल-असर? नाम नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. هذا قارئ ما شاء الله، ليس رجلا عاديا، هذا قارئ. جزاه الله خيرا. أقول هذه السورة تتكلم عن أن كل إنسان، كل من له صفة الإنسانية هو في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. शेख साहब फरमा रहे हैं कि देखें ये इस सूरत में जो बताया गया जितनी भी इंसानियत है, मतलब हर वो जिस पर इंसान का लफ्ज इतलाक होता है वो खसारे में है, वो नुकसान के अंदर है, सिवाय किन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू, उनके जो ईमान लाए, उन्होंने नेक अमाल किए और वो हक की वसीयत करते रहे और सब्र की वसीयत करते रहे। ना العلم يعني من اتصف بصفة العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك. माशाअल्लाह शेख साहब ने ये देखिए कितना प्यारा नुक्ता बताया कि इस सूरत के अंदर हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले ईमान लाए, मतलब इसे इल्म आप पहले सीखिए, इल्म हासिल कीजिए, फिर अमल,
उस पर अमल व आमिल सालिहात से पता चला। फिर सिर्फ इल्म और अमल नहीं, बल्कि उसके साथ तीसरी चीज क्या है, दावा। फिर आप उसकी तरफ दूसरों को बुलाइए, दावत दीजिए। और चौथा नुक्ता क्या पता चलता है कि आप फिर कोई भी मुश्किल आती है उस पर सब्र कीजिए, सब्र करना। ये इस सूरत से हमें 4 चीजें पता चलती। ना العلم هو هذه الجلسات التي جلستوها في الساعات الماضية في من 20 شعبان أو من قريب هذا التاريخ إلى اليوم وأنتم في العلم. فبعد ذلك تنتقلون إلى إلى الوصف الثاني وهو العمل. माशाल्लाह शेख साहब बहुत प्यारा नुक्ता बताया, बड़ी कीमती बातें बता रहे हैं कि देखें आप 25 शाबान 25 शाबान से लेकर आज तक आप इल्म हासिल कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप था, पहली सीढ़ी। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है कि आपने इल्म से अमल की तरफ मुंतकिल होना है। आपने इल्म से अमल की तरफ मुंतकिल होता है, जो इस सूरत का दूसरा नुक्ता है ना। ثم بعد ذلك العمل بما علمتم. عندما تقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناها التوحيد، فتعمل بالتوحيد وتعمل كيف تقوي التوحيد في نفسك. وتقرأ وبالوالدين إحسانا، تبر والديك وتحرص على خدمتهما وطاعتهما ونفعهما ما استطعت. बारकल्लाहु फीकुम। कह रहे हैं अब जो सेकंड स्टेप आएगा, अमल का स्टेप आएगा, जैसे आप कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, के तेरे रब ने फैसला कर दिया कि ना इबादत करो मगर उस अल्लाह की। तो ये तौहीद, इंसान अल्लाह की तौहीद की तरफ आता है। ये सबसे मतलब ये उस पर अमल कहलाता है। फिर वो अगली चीज पढ़ता है वबिल वालिदैन इहसाना, तो वो अपने वालिदैन के साथ एहसान, अच्छा सलूक करता है। तो मतलब वो दूसरी चीज की तरफ आता है। المرتبة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمت. أنت تعلمت ثم مفترض أنك تعمل ثم تدعو إلى هذا العلم والخير الذي تعلمته. माशाल्लाह बता रहे हैं कि तीसरी चीज ये है कि फिर जो आपने इल्म हासिल किया, आपने उस पर अमल किया, अद्दावा, आप उसकी तरफ दूसरों को बुलाइए भी, दूसरों को आप दावत भी दीजिए। दूसरों को दावत देकर आप उस इल्म की तरफ या जो आपने सीखा आप उसकी तरफ दूसरों को बुलाइए भी। ये तीसरा स्टेप बनता है इस सूरत के मुताबिक। ومن الدعوة أن تبدأ أولا بأهل بيتك والأقربين منك، بأن كل ما تعلمته في هذه الدورة المباركة أن تنقله بشكل مبسط وميسر ومحبب للنفس لأسرتك ولأهل بيتك ولمن هو حولك. माशाल्लाह कह रहे हैं दावत में से ये भी है कि आपकी जो फैमिली मेंबर्स है, आपके खानदान के लोग हैं, जो आपके यानी कुंबे और कबीले के लोग हैं, आप उनको इसकी दावत दीजिए। जो कुछ आपने सीखा है आप उन्हें सिखाइए, इस चीज की तरफ आप उन लोगों तक पहुंचाइए, अल्लाह के इस पैगाम को आप उन लोगों तक पहुंचाइए। ये तीसरा स्टेप कहलाता है दावत देने का, दूसरों को बुलाने का। ثم الأمر الرابع الصبر على ذلك كله، على العلم والعمل والدعوة. أن تصبر، تواصل، لا تمل ولا تكل. وإذا ضايقك أحد فقل الحمد لله، هذا طريق رسول الله وهذا طريق الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة أجمعين. نعم बारकल्लाहु फीकुम। शेख साहब ने बड़ा प्यारा नुक्ता बताया कि चौथा जो स्टेप है वो ये है कि आपने इस पर सब्र करना है। और देखिए उन्होंने अरबी जुबान बड़ी जामे है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि सब्र का ताल्लुक पिछले तीनों स्टेप के साथ है। मतलब इल्म के हासिल करने पर भी सब्र करने है, उस पर अमल करने पर भी सब्र करना है, और उसकी तरफ दावत देने पर भी सब्र करना है। इन तीनों चीजों पर आपने सब्र करना है। और ये चौथा स्टेप आ जाता है कि अगर आपको दावत में कोई मुश्किल होती है उस पर सब्र, अमल करने में कोई मुशक्कत है सब्र, और इल्म के हासिल करने में कोई मुशक्कत है उस पर आपने सब्र करना। حتى لا أطيل عليكم، ما أنا إلا مهنئ لكم وداع لكم بأن يبارك لكم في هذه الأوقات التي قضيتوها في التفسير والعلم. وندعو الله عز وجل للشيخ زين عرفان أن يخلف عليه في وقته ويبارك له في جهده وعمله، وأن يفتح عليكم من فتوحاته ويوفقكم ويسعدكم. बारकल्लाहु फीकुम। शेख साहब ये बता रहे हैं कि मैं कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बस मैं हकीकत में आप लोगों को मुबारक देने के लिए आपकी इस क्लास में तशरीफ लाया था। तो मैं यही जो आप लोगों ने इतना वक्त अल्लाह की राह में गुजारा, तफसीर के इल्म को, कुरान के इल्म को हासिल करते रहे, तो मैं आपके लिए दुआगो भी हूँ और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने माशाअल्लाह इतने अच्छे टाइम में ये वक्त गुजारा। नाम शेख غدا هو آخر الأيام أليس كذلك؟
بعد غد إن شاء الله يوم الخميس. بعد غد. أسأل الله عز وجل أن يختم لكم بالقبول، وأن يختم لكم بالعتق من النار، وأن يختم لكم بالصالحات في أعمالكم وأعمالكم، وأن يوفقكم ويسعدكم، وأن يجزيكم خيرا جميعا. والشيخ زين عرفان حقيقة يقول جزاك الله خيرا وجزاهم الله خيرا جميعا. आमीन वइयाकुम। शेख साहब बता रहे हैं कि परसों आपका आखिरी दिन है, तो मैं आपके लिए ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जहन्नुम से आज़ादी आपके नसीब में लिख दे, कि रमज़ान के अंदर वो खुश नसीब लोग जिनकी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाता है, आप उनमें से लिख दे, और आपके लिए अल्लाह कबूल लिख दे कि आपने इतने वक्त को, इतने दिनों तक आपने कुरान मजीद की तालीम के सीखने सिखाने के अंदर गुजारा। तो ये शेख साहब आपसे मुखातिब थे। नाम اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. अल्लाह युबारिक फीकुम व यतक़ब्बल मिन्ना व मिनकुम शेखना। और शेख साहब माशाल्लाह जिस दावा सेंटर के सुपरवाइजर हैं, मुदीर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी दावा सेंटर के साथ हमारी अंडरस्टैंड कुरान टीम मिलकर कई सालों से मुख्तलिफ कोर्सेज करवा रही है। अल्लाह इनको ज़ाय खैर अता करे कि इन्होंने सऊदीया के अंदर हमें अपने सेंटर्स, अपने क्लासरूम, तमाम चीज़ें हमारी टीम के लिए हमेशा मुहैया रखी माशाल्लाह, और कई सालों से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस इल्म को, इस दावा को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। शेखना नुरीद इंदना बाद वक्त मुमकिन 5 أو 7 दक़ाइक़ फनुरीद इला नस्तमिअ इला बाद इख्वा व खासतन मन मिन अलमुशारिकीन युजीद व यफ़हम व यतकल्लम अल-लुग़ा अल-अरबिय्या फमुमकिन फलयहज़ुर मअना यसअल मिनकुम औ युशारिक औ यानी इंदहु मुदाखला औ शै। أسعد بذلك أسعد بذلك. बारकल्लाहु फीकुम। तो अगर आप में से कोई जिसको अरबी अच्छी से आती है और वो शेख साहब से कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कॉल पर आ सकते हैं, वो हैंड रेज करें, इंशाल्लाह हम उनका माइक ऑन करेंगे। मेरी अंदर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हैंड रेज की ऑप्शन ओपन कर दीजिए। कोई भी अगर आपसे माइक पर आना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह, लेकिन अरबी आपकी अच्छी हो, क्योंकि वो आपको पता है कि वो शेख साहब से आप खुद ही बात करेंगे इंशाल्लाह। तो 2 लोगों ने हैंड रेज किया, चले देखते हैं फिर बाद में से कौन हैंड रेज करते हैं। हारून मूसा माशाल्लाह, हारून मूसा शेख عندنا हारून मूसा فأرسلت إليه طلب। हारून मूसा मुमकिन तफ्तह माइक, आप अपने माइक को खोल लीजिए हारून मूसा। नाम अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस्ताद अबू उसामा, उस्ताद अबू फौजान ज़ैन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फीकुम। हारून मूसा من وين معنا ما شاء الله؟ من أي مدينة؟ أنا أول من الرياض، بس حاليا أنا في لاهور باكستان. ما شاء الله. أولا أنت في الرياض والآن في مدينة لاهور باكستان، ما شاء الله. فنعم، ماذا تطلبون من الشيخ وماذا تقولون للشيخ؟ أول أنا مشكور أستاذ أبو أسامة لصرفنا من هذا كتاب مختصر ونصيحات وتفسير هذا سورة العصر، والحمد لله كلنا استفيد من هذا الدورة تقريبا سهر. الحمد لله الحين فهم قرآن تفسير أحسن من الأول. أول استفيد من القرآن العربي 5 دورات تحت أستاذ أبو فوزان، والحين هذا الشهر تقريبا 29 جزء من القرآن، وباقي إن شاء الله باليومين استفيد من الباقي وهي آخر جزء. أنا كلنا مشكور للقرآن أكاديمي ومركز الدعوة للإرشاد لسبب هذا فرصة سيدة لكلنا. الحمد لله أكثر من 15 بلد طلاب استفيد، والحمد لله استفيد كثير الحمد لله. الحمد لله. أسعدتنا يا هارون، جزاك الله خير بهذا الكلام، أسعدتنا جزاك الله خير. ما شاء الله. شيخنا هارون ما شاء الله ارتبط معنا في بداية كورونا، يعني قبل 2 وأكثر ارتبط معنا في بداية كورونا في الدورة الأولى، فأكملنا 5 دورات في أكثر من سنة، ثم بدأنا تفسير القرآن، وهو ما شاء الله معنا من 2 ونصف، ومع أسرته ومع جميع الشباب من أسرته، كما قال أكثر من 15 فردا من أسرتنا هم كلهم معنا في دوراتنا الحمد لله. جزاك الله خير، ما شاء الله. شكر الله لك يا هارون، أسأل الله عز وجل. شكرا أستاذ أبو أسامة، الله يعطيك جزاك الله خير. الأستاذ فوزان ما شاء الله، أستاذ أبو فوزان كل يوم
أكثر 2.5 ما شاء الله، جهد كبير هذا الحمد لله. في شهر والله الله رمضان، يتقبل شهر منا الصيام. ومنكم، الله يوفقنا، الله يتقبل منا ما ومنكم. شاء الله ما ما شاء شاء الله. الله. هنيئا لكم، بارك مبارك الله مبارك فيكم. عليكم. أخونا هارون موسى كان معنا من مدينة لاهور باكستان، وأولا كان في مدينة الرياض المملكة، والآن دخل معنا ورفع يده أبو حمدان. فممكن نستمع إلى قول أبو حمدان. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أبو حمدان، ما شاء الله. من أين أنت؟ أنا شيخنا أنا من المدينة المنورة. أصلا أنا الطالب في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أصلا من باكستان. ما شاء الله. أشكر فضيلة الشيخ سامي بن عبد العزيز الحسين مدير جمعية الدعوة بصحافة الرياض، وأشكركم شيخنا فضيلة الشيخ زين عرفان. أنتم ما شاء الله قد بذلتم جهودكم في تعليم القرآن الكريم، وخاصة في هذا الشهر المبارك شهر القرآن، وقد استفدنا منكم كثيرا. وصراحة هذه الدورة العلمية أو دورة تفسير القرآن الكريم ليست كانت خاصة بالعوام، بل كانت للخواص، خاصة نحن أصلا من طلاب الشريعة. وقد استفدت كثيرا، وخاصة استفدت الأسلوب والمنهج الذي نهجت عليه، وقد تعلمنا منك هذا التصميم وهذه الأشياء الشرائح. فهذا من الابتكارات التي قد يبتكر في كل المجالات هذه الأشياء. فالحمد لله قد كنا معكم في هذه منذ بداية كورونا نحن معكم، ونستفيد منكم ونتعلم منكم، وما قصرتم والله. هذا العمل ما عمل به لأهل اللغة الأردية، ما عمل به ولا نجد نظيرا بهذا العمل. والله هذا أول مرة شفنا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. الحمد لله قد خلصتم في 75 ساعة، أظن في 75 ساعة دورات تفسير القرآن كامل. وقبل هذا كانت هذه المدة كانت فقط أكثر من هذا، فقط كان كم ساعة؟ 100 ساعات. والحمد لله الآن قد اختصرتم فيها، والآن يسهل أهل اللغة الأردية أن يتعلموا القرآن الكريم. وكتب الله أجركم وشكر الله لكم، ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فنحن نشكركم بأعماق قلوبنا، ونرحب بفضيلة الشيخ سامي بن عبد العزيز بأنه قد تشرفنا باللقاء وبالكلمات، وقد استفدنا منه كثيرا. وهذا معي. جزاك الله خير يا أبا حمدان. شيخ أبو حمدان هو ما شاء الله طلاب جامعة الإسلامية، وكثير من طلاب جامعة الإسلامية موجود معنا في هذه الدورة، وكذلك طلاب جامعة الإمام موجود معنا في هذه الدورة حتى يأخذوا منا هذه الشرائح ثم يلقون دورات على مثل هذه الطريقة. فجزاهم الله خيرا، هم ما شاء الله معنا لتشجيع. إذا في أحد من الأخوات يا شيخ زين، ممكن إذا أحد من الأخوات يتسأل من الإخوان. نعم إن شاء الله شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. وشيخ ناخذ بس آخر المتواصل أو رافع يدا معا. فرفع يد أختنا فرحينة پرويز. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، نحن نساء، نحن نريد نصيحنا مفصل نصيحة من عندك إن شاء الله. فقط 3 سؤال. ما هو الدعاء؟ من هو متقين؟ ونحن نريد من المتقين كيف؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. نعم. الأخت من أي مدينة؟ مدينة في متحدة الأمريكية، من كاليفورنيا. من كاليفورنيا ما شاء الله، ومشاركة معنا في هذه الدورة، وما شاء الله شيخ مجتهدة في هذه الدورة، وما شاء الله من أول يوم، وهي التي تسابق دائما لما أسأل. فما شاء الله أخت فرحينة دائما تسابق جميع الحاضرين، فجزاها الله خيرا. فكما سأل منكم فممكن تجيبون، وأنا سأترجم إن شاء الله.
هي سألت عن الدعاء. اي عن الدعاء يعني ان تدعوا لها وكذلك عن التقوى والنصيحة للنساء. اي نعم. كان قالت نصيحة للنساء صحيح؟ اي نعم نصيحة للنساء. نعم. طيب أولا نصيحة للنساء والرجال عموما بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. نعم شيخ. نعم शेख साहब से माशाल्लाह सिस्टर फरहीना ने तलब किया कि उन्हें कोई नसीहत करें, तो शेख साहब कह रहे हैं मैं औरतों को मर्दों को सबसे पहली नसीहत तो यही करता हूँ कि आप खुले आम या अकेले में हो तो आप अल्लाह के तकवा को इख्तियार करें, आप अल्लाह का डर इख्तियार करें, ये नसीहत. نعم. الأمر الثاني فيما يتعلق بالنساء أن تجتهد في صيانة بيتها ونفع أهلها. और दूसरा शेख साहब ने कहा कि मैं औरतों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने घर को बेहतर बनाने पर ये खुसूसी तवज्जो दें और अपने अहलो याल जो है उनकी खिदमत उनकी तरबियत पर अपने बच्चों को खुसूसी इस चीज़ पर तरजीह दें. الأمر الآخر أيضا أن تجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل والإكثار من ذكره. और दूसरी बात ये कि औरतों को ये भी चाहिए कि वो खास कर अल्लाह की किताब को याद करने की कोशिश करें और इसके लिए वो खूब मेहनत करें. الأمر الآخر أن تجتهد في حفظ وقتها. تجتهد في حفظ وقتها بما يفيدها ويعود عليها بالنفع. और औरतों को चाहिए कि वो अपने वक्त की भी खुसूसी हिफाजत करें और उन्हें उस कामों में अपने वक्त को गुजारें जिन कामों का फायदा उनके अपने आप को हासिल. نعم. وكذلك يعني أن تكون حريصة على حجابها وعفتها وإعانة الناس على الخير في ذلك. और औरतों को ये भी चाहिए कि वो पर्दे की हिफाजत करें और अपनी इफ़्फ़त और अपनी इस्मत की खुसूसी तौर पर हिफाजत करें बाकी सबसे. نعم. هي سألت عن التقوى، كيف نحقق التقوى أو شيء من هذا. أي نعم شيخ. صحيح. طيب التقوى طبعا لما إنسان يقرأ القرآن العظيم يجد الحث على التقوى متنوعا وكثيرا ومتعددا. نعم شيخ. أقول التقوى كثير في القرآن العظيم بطرق مختلفة، بالأمر وبما أعده الله عز وجل للمتقين وبمعرفة سبل المتقين وأوصافهم. نعم शेख साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि तकवा कुरान मजीद में कई मर्तबा इसका जिक्र गुजरा है और फिर मुत्तकीन की जो अल्लाह ने फजीलत और जो मुत्तकीन का बदला और जो कुछ अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा है, तो इस एतबारात से इन तमाम एतबारात से तकवे का जिक्र कुरान मजीद में कई एक मकामात पर गुजरा है. على سبيل المثال مما مر عليكم في هذه الدورة في سورة الذاريات إن المتقين أين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. शेख साहब ने बताया कि आपने अभी सूरह के अंदर सूरह الذاريات में يستغفرون وفي أموالهم حق. نعم 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 السائل والمحروم. تفضل. نعم. तो शेख साहब ने सूरह الذاريات की आयत व शेख अखदना هذه الآيات قبل الأمس अखदना هذه आयत في هذه الدورة. तो शेख साहब ने बताया कि सूरह الذاريات की आपने इन आयत को पढ़ा होगा कि मुत्तकीन जो है वो अल्लाह के यहाँ जन्नात चश्मों में होंगे, बागात में होंगे, और इससे पहले वो बड़े मुहसिनीन थे, एहसान करने वाले थे इससे पहले, और वो रातों को बहुत कम सोया करते थे, रातों को बहुत कम लेटा करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारा करते थे, और उनके मालों के अंदर सवाल करने वालों का और जिन्हें अल्लाह ने महरूम रखे उनका एक बाकायदा हक उनके मालों में हुआ करता था. نعم. الجنة موجودة الآن وقد أعدها الله وهيأها للمتقين. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هيئت وجهزت للمتقين. माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नुक्ता शेख साहब ने बयान किया. कहते हैं जन्नत इस वक्त मौजूद है. देखिए जन्नत इस वक्त मौजूद है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि अल्लाह ने जन्नत को मुत्तकीन के लिए तैयार करके रखा हुआ है. सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम जन्नत, तो तुम्हें चाहिए तुम उस जन्नत और अल्लाह की उस मगफिरत की तरफ जल्दी करो. तो जन्नत मौजूद है, आप उसकी तरफ जल्दी कीजिए, सबकत ले जाइए उसकी तरफ. نعم هذا ما عندي. الله يحفظكم.
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा अला हादिही नसीहा अल क़य्यिमा व نعم شيخ هل عندنا وقت لأن أنا أرى فقط إحدى الأخوات هي رافعة يديها وإلى بقية الحمد لله فهل نأخذها ولا كيف؟ ما في مانع. لا. अखूना समीना इदरीस आपका हैंड रेज है, अगर आप कॉल बनाना चाहें तो आप जो भी रिक्वेस्ट करना चाहें करें, फिर हम आप पर ही इक्तिफा करते हैं। जी सिस्टर समीना इदरीस आपका हैंड रेज है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो माइक ऑन कर सकती हैं। नाम सिस्टर समीना इदरीस राफिया यदहा وممكن تفتح माइक إذا لم تستطيع فعندنا أخت نصرين عندنا أخت نسرين ممكن تفتح مايك. نعم السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अरबी में बात करना नहीं, ये क्वेश्चन पूछना है। यौम तकूनु समाउ कल मुहल, जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की मिसल हो जाएगा जी, तो ये किस तरह होगा, इसकी तफसीर चाहिए। आसमान तेल की तिलछट की तरह किस तरह होगा? نعم شيخ اليوم أخذنا هذه الآية. الأخت نسرين تسأل عن هذه الآية تكون السماء كالمهل، فتقول ما هي كيفية المهل، ما معنى المهل وما هي كيفية المهل؟ هذا يوجه للشيخ زين عرفان، فهو درس التفسير عنده. اي نعم बारकल्लाहु फीकुम। तो शेख साहब वो मुझे कह रहे हैं कि आप इसकी वजाहत करेंगे क्योंकि तफसीर में तो आपने दर्स दिया। तो जी सिस्टर इंशाल्लाह आपके इस सवाल की तरफ आते हैं। सिस्टर समीना आपका भी माइक ऑन हो चुका है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप बोल सकती हैं। जी सिस्टर समीना इदरीस अस्सलाम वालेकुम। आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। वल्लाहु आलम की आवाज क्यों नहीं आ रही। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। नाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर मुझे तो ये सूरतुल अस्र वो पढ़ के सुनानी थी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया। अच्छा शेख उख्त तक़ूल अना उरीद अन अक़रा अला शेख सूरतुल अस्र लिहाज़ा अना रफ़अत यदा फमुमकिन नस्मा मिन्हु सूरतुल अस्र। नाम जी मेरी बहन आप पढ़िए तफद्दली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ वतवासौ बिस्सब्र। माशाल्लाह अहसन अल्लाहु इलैक या उख्ती अज़ीज़ा। तय्यबा माशाल्लाह। और आप माशाल्लाह कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से। आप कराची से, माशाल्लाह। शेख कम तहफ़ज़ القرآن؟ نعم من مدينة कराची पाकिस्तान। أكبر كم تحفظ من القرآن؟ نعم माशाल्लाह। أو كم تحفظ من القرآن؟ जी सिस्टर समीना आप कितना कुरान मजीद आपको याद है? आप माइक आपका ऑफ हो चुका है, लेकिन आप अगर माइक पर आना चाहे तो बताइए, या चैट में बता दीजिए आपको कितना कुरान मजीद याद है, कितने पारे? मैंने पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हो। माशाल्लाह हिया शेख हाफिदा लिकुल कुरान माशाल्लाह हाफिदा लिकिताबिल्लाह। هنيئا لها، بس تعلم جيرانها وتعلم من عندها، لابد خيركم من تعلم القرآन وعلمه। ना शेख साहब कह रहे हैं लाजमी है कि आप अपने घर में और अपने हमसायों को भी कुरान मजीद सिखाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो आपने सीख तो लिया है, अब आप दूसरों को भी सिखाइए। जी सर मैं सिखा रही हूँ, अरबी ग्रामर भी पढ़ाती हूँ। अरबी ग्रामर मदरसे। नाम शेख उख्तुना माशाल्लाह मुदर्रिसा व कारिया तुदर्रिस कुरान अल-करीम व कज़ालिक तुदर्रिस क़वाइद अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। माशाल्लाह। तरावियों में कुरान पाक भी सुनाया। इसी साल आपने सुनाया है? जी इसी साल के आपने कुरान भी सुनाया है? जी सर अभी चल रहा है हमारा।
27 पारा इंशाल्लाह ताला 28वीं तरावी को कंप्लीट हो जाएगी। माशाल्लाह। शेख उख्तना तक़ूल हिया माशाल्लाह तुसम्मी अल-कुरान फी सलात अत-तरावीह लिन-निसा وقالت أنا كملت الجزء السابع والعشرين وبعد 3 أيام سأكمل القرآن إن شاء الله في التراويح. تصلي بالناس يعني إمامة؟ تصلي بالنساء إمامة؟ تصلي بالنساء. نعم ما شاء الله. الله ينفع بها، نفع الله بها، نفع الله بها. ما شاء الله. जी अल्लाह आपके ज़रिए जी माजरत से आपका माइक ऑन हो गया। बारकल्लाहु फीकुम। तो चलें माशाल्लाह हैंड तो अभी और भी लोगों का रेज है, लेकिन हम इसी पर इक्तिफा करते हैं। अगर टीम में से कोई शेख साहब से कुछ कहना चाहे, अहमद भाई आप या कोई, तो आप तशरीफ ला सकते हैं शेख का शुक्रिया अदा करने के लिए। نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس أحمد حسين معك شيخ. مهندس أحمد حسين اللي زارنا في المكتب قبل السفر. ما شاء الله. نعم نعم. شفناه قبل شهور بس يعطيكم العافية. مني حياكم الله وجزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. آمين وإياكم. استفدنا منكم كثيرا. الله يجزاكم خير، نفع الله بكم وكتب الله أجركم وأثابكم في هالساعات المباركة والليالي الطيبة الفاضلة. بارك الله فيكم। और शेख साहब से बहुत से लोग दुआ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं शेख साहब से इंशाल्लाह बताता हूँ। शेख कसीर मिन अत-तुल्लाब व तालिबात अल-मुशारिकीन फी हादिही दौरा हम यतलबून मिनकुम अद-दुआ फी हादिही अल-लयाली अल-मुबारका व फी हादा अश-शहर अल-मुबारक لا تنسوهم في دعواتكم. بارك الله فيكم. وإن كنا نحن أحوج إليه من الدعاء، لكن نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره وأن يعيننا ويتقبل منا وأن يفرج همومنا ويكشف همومنا ويجعلنا من أهل القرآن جميعا، أهل القرآن الذي معه الله خاصته. وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يفتح علينا جميعا من عنده ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلوبا طيبة ومؤمنة وصادقة، وهو ولذلك القادر عليه. اللهم صل على محمد. بارك الله فيكم. وشيخ أشكركم باسمي وباسم جميع المشاركين في هذه الدورة، وهم كما رأيتم أكثر من 95 حسابا كانت معنا، والحمد لله عدد المشاركين عندنا في زوم أكثر من 300، وكذلك عندنا في يوتيوب وعندنا فيسبوك، لأن هذه الدورة عن طريق زوم، ولكن البث المباشر عن طريق فيسبوك، ثم نبث التسجيل لهذه الدورات لحلقات هذه الدورة على اليوتيوب. فجميع المشاركين معنا عن طريق الجهة زوم وفيسبوك ويوتيوب. فكل هذا الفريق شيخ معي اللي في باناليست 15 شخصا، منهم مهندس أحمد، ومنهم مهندس فهيم الدين، منهم مهندس أمجد، منهم مهندس عمير من قطر، ومهندس عاشق، ما شاء الله جميع هؤلاء، وكذلك أخوات معنا، أخت بشرى من الهند، وأخت خديجة، أخت نمرة، أخت ميمونة، أخت رابعة، أخت رافعة، أخت زوها فاطمة. هذه 15 أشخاص كلهم في غرفة المنتظمين، هم الذين ينظمون. شيخ عندنا أكثر من 10 مجموعات لهذه الدورة على واتساب، فهم يديرون هذه المجموعات، يرسلون الروابط في هذه المجموعات وكذلك الإعلانات وكل ما يتعلق بهذه الدورة، فهم يديرون هذه المجموعات. وكذلك عندنا فريق لزوم وفريق ليوتيوب وفريق لفيسبوك، فجزاهم الله خيرا. وكذلك الله كلكم شركاء في الأجر إن شاء الله، كلكم شركاء في الأجر، هنيئا لكم الأجر، هنيئا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخ وبارك الله فيكم. मैं आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से भी शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख अशकुरुकुम बिस्मी व बिस्मी जमील मुशारिकीन फी हादिही दौरा अला मा शारकतमुना व असअदतमुना बिमुशारकतिकुम ونرجو منكم المستقبل أن تشاركوا معنا في مثل هذه الدورات. بارك الله فيكم. أنا أسعد وأتشرف بالحضور، أسعد وأتشرف بالحضور. جزاكم الله خيرا وكتب الله وجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ زين، نراك إن شاء الله لاحقا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الله يحييك. حفظكم الله حفظكم الله حفظكم الله. السلام عليكم. जी तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम फिर इसी पर अमजद भाई अगर कोई आपकी तरफ से अनाउंसमेंट है तो आप कर दीजिए, वरना हम फिर इसी पर इत्तिफाक करते हैं। जी बारकल्लाह फीका सर। जी तो अहमद भाई अबू फौजन, हाँ जी, कल हम तकरीबन 30वां पारा हाफ तक पढ़ लेंगे और फिर इंशाल्लाह परसों दुआ भी हो जाएगी और हम मुकम्मल भी करेंगे। जी अहमद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
जी बस यही मैंने आपने कह दिया माशाल्लाह। तो तबारकल्लाह कि हम परसों जो है इंशाल्लाह ख़त्म कुरान की दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह, और अपने अगले कोर्सेज जो हैं उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और रजिस्ट्रेशन लिंक भी ग्रुप्स में शेयर कर दिए जाएंगे बिइज़्निल्लाह। परसों जी फ़हीम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अमजद भाई बताइए। फ़हीम भाई जी बस जज़ाकल्लाह खैर शेख साहब। बहुत से हमारे अहबाब जो दोस्त और भाई बहन इंडिया से शामिल हैं क्लास में, उन्होंने दरख्वास्त की थी शेख से दुआ करवाने की। तो इंशाल्लाह शेख का टाइम की कमी की वजह से हम ख़त्म कुरान में इंशाल्लाह शेख से खुसूसी दुआ रखेंगे इंशाल्लाह। जितने भी मुसलमान दुनिया में जहाँ भी हैं अल्लाह ताला सबके लिए आसान फरमाए, उनकी मुश्किल आमीन आमीन। और आप यकीन करें कि मैं यानी ज़ाती तौर पर जी वालेकुम अस्सलाम तो जी सिस्टर। जी जैन भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप परसों ये खत्म कुरान की जो दुआ है थोड़ा लेट शुरू करेंगे। दरअसल हम आजकल क़यामुल लैल की रातें हैं ना, तो मस्जिद से आते हुए हमें लेट हो जाता है। हम ज्वाइन तो रोज करते हैं लेकिन ये कि हमें 11 साढ़े 11 का टाइम हो जाता है घर आते हुए। तो आप दुआ प्लीज जरा थोड़ी लेट कर दीजिएगा, हम बाद में तो सुन लेते हैं। देखिए जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि पहले हम 30वां पारा मुकम्मल कर लेंगे परसों इंशाल्लाह, जुमेरात का दिन होगा, हम 30वां पारा पहले मुकम्मल करेंगे। मुकम्मल करने के बाद फिर मैं टीम को ये दावत दूंगा कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए और इन तमाम उमूर के लिए आ जाएं। और जिस तरह अभी हमने तकरीबन हमारे पाकिस्तान के 12 बजे और सऊदी अरब के 10 बजे हमने शेख की नसीहत को शुरू किया, तो तकरीबन इसी टाइम पे हम दुआ शुरू करेंगे। ठीक है ऐसे इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह फिर हम जरूर इसमें शामिल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाहु फीकुम। तो इसी पर हम इत्तिफाक करते हैं इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। और सिस्टर का जो सवाल था तेल की तलछट वाला, तो फिर आप कल मुझे याद करवाइएगा, बल्कि सिस्टर मैमूना सिस्टर खतीजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस सवाल को नोट भी कर लीजिए, कल मुझे याद करवाइएगा। कल इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स के बाद सवाल जवाब का सेशन होगा उसमें हम इस सवाल को भी देंगे इंशाल्लाह। तो इसी पर इत्तिफाक करते हैं इंशाल्लाह। आखिरी पारे खासकर बच्चों को सबको याद होते हैं, तो आप आखिरी पारों के अंदर दोबारा से सबको दावत भी दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।